Welcome everyone. We are going to begin the new chapter, that is metal and non-metal. See the picture, the lovely picture on the beginning of the chapter. This picture is about metals and non-metals. Metals consist of nails, iron, as you see that these are mostly in solid state, whereas in non-metal, this display here is generally in the liquid form because gaseous form cannot be displayed, but most of the non-metal exist in gaseous form. Though non-metal exist in all three states of matter, the majority are gases, such as nitrogen, oxygen, whereas bromine is liquid, and there are few solid non-metals also, carbon and sulfur. Let's move what is there in this chapter. We will get to know more things about this chapter. You have studied in the previous class that materials that are made up of same kind of particles are known as pure substances. Now, what is pure substance? What is pure substance? Pure substances are made up of only one kind of material. It can be further divided into two forms, that is element and compound. It is further divided into element and compound. That is element and compound. You have studied in standard 7 also, element and compound. A sample of a given element or a given compound is a pure substance. Now, what is element and what is compound? In standard 7, you have studied about element. Element is the pure form. Like if I say element of carbon, it will consist only carbon atom. Whereas when I say compound, it will have more than one element. Like if I say sodium, you recall the symbol of sodium, Na. This is element. Okay. If I say compound, so I would say NaCl, that is common salt. So it is made, this is also pure substance and this is also pure substance. This is also made up of atoms and this is also made up of atoms. The only difference between these compound and element is that the element is made up of one type of atom, whereas compounds are made up of two or more different types of atoms. Just see NaCl, right? This is because a given element compound is made up of atoms or molecules. Now you tell me the difference between atoms and molecules. I'm going to tell you, explain it by example. Atoms and molecule. Atoms, let's take example of oxygen. The symbol of oxygen is O. So we are saying, if we are writing O, it means one atom of oxygen. Okay, but oxygen doesn't occur naturally, doesn't occur in this state. Okay, so oxygen is always written in O2 form. So this is one molecule, this is one atom of oxygen and this is one molecule of oxygen. Now how come this, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पीरियोडिक टेबल में तो सिर्फ हम लोग एलिमेंट का नाम लिखते हैं ना. पीरियोडिक टेबल अगर तुम लोग देखे होगे तो वी ऑब्जर्व द नेम ऑफ द एलिमेंट्स बाय इट्स सिंबल, नॉट बाय एटम्स, नॉट बाय मॉलिक्यूल्स. आई मीन मॉलिक्यूल हम लोग O2, N2 ऐसा नहीं देखते हैं पीरियोडिक टेबल में. वी सी द symbol of a particular atom. Okay, so this is because a given element compound is made up of atoms और सारे चीज़ मॉलिक्यूल्स में भी एटम्स है, और एटम्स तो सबसे छोटा यूनिट होता ही है किसी भी मैटर का, ऑफ द सेम काइंड. डिफरेंट एलिमेंट्स कंपाउंड्स, इसलिए यहाँ पर दोनों को दिया हुआ है ऑब्लिक करके. डिफर फ्रॉम ईच अदर इन देयर फिजिकल एंड chemical properties. A physical property, what do you understand by physical? Physical means how is outlook, like
कि if I talk about someone कि a person is tall or dark or short, fat, thin, so I am talking about his physical characteristic कि उसका चेहरा कैसा है, देखने में बाल कैसे हैं, कैसे चलता है, तो ये सारा क्या हुआ उसका फिज़िकल कैरेक्टरिस्टिक। अब केमिकल प्रॉपर्टीज़ में क्या है कि वो किस तरह से कंबाइन कर रहा है, किस तरह से रिएक्ट कर रहा है, किसके साथ कैसा बिहेवियर कर रहा है, दिस इज़ केमिकल प्रॉपर्टीज़। यू मस्ट हैव लर्नड इट इन स्टैंडर्ड 6। स्टैंडर्ड 6 में केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या था? And if we are talking in terms of chemical properties of metals and non-metals, so we are basically talking about that how it will react with other elements, how it will what is its stability, how it is going to take part in the reactions, that will define its केमिकल प्रॉपर्टीज़ कि वो एयर के साथ कैसे रिएक्ट करेगा, एसिड के साथ कैसे रिएक्ट करेगा, या फिर उसको कंबशन कराया जाएगा तो उसमें क्या, उसको गर्म किया जाएगा तो क्या प्रॉपर्टीज़ चेंज होंगे। तो दिस इज़ केमिकल प्रॉपर्टीज़। एज तो इन द लेट्स सी व्हाट इज़ द सो डिफरेंट एलिमेंट्स कंपाउंड्स differ from each other in their physical and chemical properties. Of course सारे different हैं, different अगर हैं तो उन लोग का look भी different होगा और उसके अंदर की characteristic भी different होगी, how they will react in a reaction, how it will react to different elements in the periodic table or on the earth, as they are made up of atoms or molecules of definitely अगर class में ही अगर 40 children are there in the class, तो every child has their own फिज़िकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। यहाँ पर बच्चे के केस में क्या बोलेंगे, उसका बिहेवियर कैसा है। कोई बच्चा ज़्यादा हंसता है, कोई बच्चा जल्दी से मिक्सअप हो जाता है, जबकि कोई बच्चे को बहुत टाइम लगता है किसी के साथ मिक्सअप होने में। तो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक, जैसे रिएक्ट कैसे वो हर बच्चा का रिएक्शन हर लोगों के लिए हो सकता है अलग अलग होगा। तो दैट डिफाइंस द केमिकल प्रॉपर्टीज़। अगर कोई बहुत ही मिक्सिंग नेचर का है, वो जल्दी जल्दी सब लोगों के साथ फ्रेंडशिप करेगा, फटाफट रिएक्ट करेगा, सबके साथ मिक्सअप होगा। जबकि अगर वो एकदम शाई है, बात नहीं करना चाहता है, तो वो बहुत मुश्किल से या फिर वो एक साइड में ही बैठा रहेगा, ही और शी विल नॉट स्पीक टू एनीबडी एंड जनरली नॉन रिएक्टिव वे में बैठे रहेंगे, है ना। उनके अंदर है कुछ कैरेक्टरिस्टिक बट इट विल बी नॉट शोन। Now let's move to the next part, classification of elements. What do you understand by classification? Classification is grouping of elements, grouping of things. Elements क्या, यहाँ पर तो elements लिखा हुआ, but basically I'm talking about classification. तो classification is grouping of things in a proper order in according to shape, size, chemical property. उसके कि एक जैसे चीज़ों को एक साथ रख रहा है। जैसे कि just you have visited kirana shop, that they keep the shops at one place, they keep all the edibles at one place. So when they are trying to sell, they are selling the items, they don't have to find out from the mess कि उन्हें सब जगह एक अगर साबुन ढूंढना है तो वो पूरा दुकान नहीं खंगालते, उन्हें पता रहता है कि वेयर इट इज़। उन्होंने उस तरह से अरेंज किया है कि भाई हम ईडेबल्स इधर रखेंगे, बिस्किट्स बेकरी आइटम इधर रखेंगे, या सोप्स और डिफरेंट जो अदर आइटम्स है टॉयलेटरीज उसको एक साइड रखेंगे। तो दे हैव द proper arrangement, they have proper way of arranging the things so that they have the convenience to find, they have the convenient way to find the things in the shop. Similarly एलिमेंट्स को भी क्लासीफाई इस तरह से किया गया है ताकि हमें उसके बारे में पढ़ने में आसानी हो, है ना। जैसे कि अगर क्लास में ऐसा करते स्कूल में लेट्स सी द एग्जांपल ऑफ स्कूल, ठीक है। अब स्कूल में LKG टू स्टैंडर्ड 12 है, फाइन। अब हम अगर सारे लोगों को LKG के बच्चों को 12th के बच्चों को सारों को मिक्स कर दें और सबके बारे में जानकारी इकट्ठा करने लगे तो बहुत मुश्किल होगी। कि अगर LKG के बच्चे को अगर 12th में के पास वाले 11th में या 9th के बच्चों के साथ कंपैरिजन करके पढ़ा जाएगा, उन लोगों के बारे में जानकारी इकट्ठी की जाए, तो इट विल बी वेरी मेसी।
लेकिन अगर हमें फाइंड आउट करना है कि एलकेजी के बच्चों का एक कैरेक्टरिस्टिक होगा, उनका एज ग्रुप एक होगा, उन लोगों का हाइट वगैरह ऑलमोस्ट आगे पीछे होगा. वी कैन नॉट कंपेयर एलकेजी चिल्ड्रन, द हाइट ऑफ एलकेजी चिल्ड्रन टू द हाइट ऑफ स्टैंडर्ड 12 चिल्ड्रन. तो क्या है, इन लोगों का कुछ कैरेक्टरिस्टिक एक जैसा होगा, उन लोगों का मेंटल लेवल लगभग एक जैसा होगा, उन लोगों का तो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक है, हाइट वेट वगैरह मतलब मोस्टली सेम होगा. तो क्या हुआ, कैटेगराइज हुआ, क्लासीफाई कर दिया गया. ठीक है, क्योंकि उससे हमें आसानी रहेगी. हाँ, एलकेजी के बच्चों में ये कैरेक्टरिस्टिक है. उसी तरह से एलिमेंट्स को, अब इतने सारे एलिमेंट्स हैं और सब एलिमेंट्स को अलग अलग अगर हम लोग पढ़ते हैं तो इट विल बी अ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क. इट इज़ नॉट फिजिबल, नॉट प्रैक्टिकल. तो क्या किया गया कि एक जैसे कैरेक्टरिस्टिक को, लाइक एलकेजी के बच्चे ऐसे होते हैं तो एक ग्रुप बना दिया गया, उस ग्रुप में वैसे ही बच्चों को रखा गया, यानी वैसे ही एलिमेंट्स को रखा गया जिनके कैरेक्टरिस्टिक एक जैसे हैं, और ताकि उसको पढ़ने में और उसके बारे में प्रॉपर्टीज़ को रीड करने में आसानी हो. 12th के बच्चों का कैरेक्टरिस्टिक लगभग एक जैसा होगा. दे आर वो टीनेजर्स होंगे, उनका मेंटल लेवल अलग होगा, उनका रिएक्टिविटी, उनका बात करने का तरीका डेफिनेटली एलकेजी के बच्चों से अलग होगा. तो इन लोगों को अलग कैटेगरी बना दिया गया. 11th के लोगों का थोड़ा सा डिफरेंट होगा. उसी तरह से अलग अलग क्लासेस का अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक होगा. तो ये जो क्लासेस है वही क्लासिफिकेशन है. इसमें एलिमेंट्स 118 एलिमेंट्स है. तो यहाँ पर अगर हम लोग 12 में डिवाइड किए तो यहाँ 118 एलिमेंट्स को ऐसे डिवाइड किए कि एक जैसे कैरेक्टरिस्टिक वाले एलिमेंट्स को एक ग्रुप में बांध दिए. ओके, जिसको हम लोग पीरियोडिक टेबल में आगे पढ़ेंगे. ओके, तो इट इज़ डिफ़िकल्ट to study and describe all the properties of all these elements separately. Definitely, hence elements showing similar properties are grouped together and their general characteristics are studied. Such grouping of elements is called classification of elements. Just like grocery shopkeeper or person who is selling vegetable or anywhere, you can see the example of classification everywhere, whether it is your kitchen or it is your roadside vendors or clothes shop और ज्वेलरी शॉप में भी सारे अंगूठी एक साथ रखे रहेंगे, गले का एक साथ रखे रहेंगे. तो सारी जगह क्लासिफिकेशन इज एवरीवेयर फॉर द कन्वीनियंस. ओके, तो बेसिकली इट इज़ फॉर द कन्वीनियंस. The elements have been broadly classified into two categories, metals and non-metals. अब इसको ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया. सपोज़ कि हम लोग बोल देते हैं कि हाँ, ह्यूमन काइंड को दो कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया, लाइक एक साइड मेल, एक साइड फीमेल, या फिर गुड और बैड. तो यहाँ पर हालांकि मेटल और नॉन मेटल में गुड बैड का बात नहीं है, लेकिन दिस फॉर द कन्वीनियंस वी कैन से दैट इट हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू टू ब्रॉड कैटेगरीज. This classification is based on the difference in their physical and chemical properties. Okay, what's next? Next is occurrence of elements. अब ये मिलता कहाँ पर है, ये अर्थ पर है कहाँ पर? इतने सारे हैं. We are talking about 118 elements, but where do they exist? Obviously it is on the earth crust only. Now metal exists in abundance. Abundance means in huge quantity, बहुत ज़्यादा अमाउंट में in the earth crust. What is crust? Geography में ज़रूर पढ़े होगे. The crust is made up of solid rock. जो अर्थ का जो लेयर होता है ना ऊपर वाला, उसको कहते हैं crust. Okay, it is made up of solid rocks and minerals. और इसके नीचे जो रहता है, crust के नीचे जो होता है मेंटल होता है, which is also mostly solid rocks and minerals. इसके नीचे जो होता है, तो अर्थ क्रस्ट जो हुआ उसी पर मेटल्स मिलते हैं. यहाँ पर हम लोग नॉन मेटल्स की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम लोग बात कर रहे हैं मेटल्स. एल्युमिनियम इज़ द मोस्ट अबंडेंट मेटल. सबसे ज़्यादा, अबंडेंट मीन्स सबसे ज़्यादा, इन द मोस्ट ऑफ द अर्थ क्रस्ट इज रिच विद एल्युमिनियम. एल्युमिनियम का सबसे ज़्यादा हमारे अर्थ पर अबंडिटी है, मतलब अबंडेंस है. तो इट इज़ फॉलोड बाय आयरन. ये सब क्वेश्चन बनता है, 1 मार्क का क्वेश्चन, MCQ वगैरह में क्वेश्चन आएगा कि मोस्ट अबंडेंट मेटल ऑन द अर्थ क्रस्ट, तो एल्युमिनियम. अगर ये भी क्वेश्चन आ जाएगा कि सेकंड मोस्ट अबंडेंट मेटल, तो आयरन. हाईली रिएक्टिव मेटल. अब रिएक्टिव मेटल्स क्या होता है?
जैसे कि आई हैव जस्ट टोल्ड दैट सम इन द क्लास देयर आर स्टूडेंट हु आर नॉट सो ग्रीगैरस, मतलब बहुत लोगों से जल्दी मिलते जुलते नहीं हैं, और कुछ लोग हैं फटाफट लोगों से दोस्ती करते हैं। तो रिएक्टिव मतलब रिएक्टिव उनको बोलेंगे जो जल्दी जल्दी सभी लोगों से मिलते हैं, मतलब जल्दी रिएक्ट करते हैं। लाइक सोडियम पोटेशियम, ये सोडियम पोटेशियम ये क्या है, मेटल, एल्युमिनियम, जिंक आर फाउंड इन नेचर। हाईली रिएक्टिव मेटल्स लाइक सोडियम पोटेशियम अल्मोनियम जिंक आर फाउंड इन नेचर इन द फॉर्म ऑफ देयर कंपाउंड्स। अब यहाँ पर क्या है कि ये प्योर फॉर्म में नहीं मिलेंगे, क्योंकि अब अगर मैं किसी ऐसे बच्चे की बात कर रही हूँ जो बहुत मिक्सिंग नेचर का है, तो वो कभी अकेला रहेगा ही नहीं, वो किसी न किसी के साथ रहेगा, किसी ना कोई दोस्त उसके साथ लगा रहेगा। तो उसी तरह से जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं वो अकेले नहीं रहेंगे, मतलब वो किसी न किसी के साथ कंबाइंड फॉर्म में रहेंगे। वो हम लोग को फ्री स्टेट में नहीं मिल सकते हैं कि एकदम प्योर फॉर्म में कि हाँ लाइक अगर हम लोग सोडियम निकाल रहे हैं, अगर सोडियम एटम की बात कर रहे हैं, तो ये डायरेक्ट सोडियम एटम हम लोग को अर्थ क्रस्ट पे नहीं मिलेगा। ये पोटेशियम हम लोग को डायरेक्ट नहीं मिलेगा, ये किसी के साथ मिक्स होकर के मिलेगा। एल्युमिनियम ये जिसका ओर हम लोग जो बोलते हैं उसमें से निकाला जाता है, उसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है, प्योरीफाई किया जाता है, तब हमें ये प्योर फॉर्म मिलता है। तो ये जो रिएक्टिव मेटल्स हैं वो कभी भी अपने प्योर फॉर्म में नेचर में नहीं मिलेंगे। वो किस फॉर्म में मिलेंगे? कंपाउंड में, लाइक उसके ऑक्साइड के फॉर्म में मिलेंगे, सल्फाइड्स में मिलेंगे, कार्बोनेट्स में। वो मतलब किसी के साथ रिएक्ट करके, सल्फर के साथ रिएक्ट करेंगे सल्फाइड, कार्बन के साथ रिएक्ट करेंगे कार्बोनेट्स, ऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे ऑक्साइड्स। मतलब वो किसी के साथ रिएक्ट करके कोई ना कोई दोस्त के ही साथ वो मिले हुए मिलेंगे, उसमें से अलग करना पड़ेगा। लेस रिएक्टिव मेटल्स लाइक गोल्ड, सिल्वर एंड प्लैटिनम ऑकर इन द नेचर इन देयर एलिमेंटल और नेटिव स्टेट। मतलब ये जो है ये प्योर फॉर्म में मिलेंगे, क्योंकि ये रिएक्टिव ही नहीं है, किसी के साथ रिएक्ट ही नहीं करते हैं जल्दी। मतलब बहुत ही अलग सिचुएशन होता है, देन ओनली इट रिएक्ट, बट जनरली इट डजंट रिएक्ट। तो वो ये अपने फ्री फॉर्म में, मतलब गोल्ड का सीधा गोल्ड निकलेगा चमकता हुआ, तो वो एक्सट्रैक्ट दैट उसका एक पूरा प्रोसेस है। चलो इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। मेनी नॉन मेटल्स आर फाउंड many non-metals are found in their free states in the atmosphere। अब नॉन मेटल्स जो है वो अपने फ्री स्टेट में ही मिलते हैं। फ्री स्टेट मतलब प्योर फॉर्म में। ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन आर टू वेल नोन एग्जाम्पल ऑफ सच नॉन मेटल्स। ऑक्सीजन O2, नाइट्रोजन N2, ये सारे प्योर हुए, मतलब इसमें कोई मिक्सिंग नहीं है। नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन ही है, ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन, ये लेकिन मॉलिक्यूल है। अगर हम O2 लिख रहे हैं तो ये मॉलिक्यूल है, ओके। अगर सिर्फ O लिखेंगे तब ये होगा एटम, लेकिन यहाँ पर ये मॉलिक्यूल है। ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन आर टू वेल नोन एग्जाम्पल ऑफ सच नॉन मेटल्स। Several non-metals exist in nature in the form of their compounds like oxides and nitrates। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये फ्री प्योर फॉर्म में ही मिलेंगे, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी हैं जो कि उसके ऑक्साइड और नाइट्रेट्स के फॉर्म में मिलेंगे, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन ऑक्साइड या फिर सल्फर डाइऑक्साइड। उसी तरह से नाइट्रेट्स का सल्फर नाइट्रेट्स, तो ये सब कंपाउंड बनाते हैं, ठीक है। तो सल्फर एक्सिस्ट इन द फ्री स्टेट एज वेल एज इन द कंबाइंड स्टेट। नाउ लेट्स गो बैक टू द क्लासरूम एंड विल टॉक अबाउट द पर्सन हु इज़ नॉट दैट फ्रेंडली एज वेल एज नॉट दैट शाई। मतलब बीच वाला है कि भाई अकेले रहने में भी उसे कोई फ्री स्टेट में अकेले रहने में भी उसे कोई परेशानी नहीं है, और कुछ लोगों के साथ मिल के भी रहने में कोई परेशानी नहीं है। तो सल्फर इज़ सच एलिमेंट विच एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट, मतलब अकेले भी मतलब प्योर फॉर्म में भी मिल जाता है, और कंबाइंड स्टेट मतलब किसी के साथ मिला हुआ भी मिलता है, मतलब उसमें से उसको प्यूरिफाई करना पड़ता है। सल्फाइड्स एंड सल्फेट्स। कार्बन एक्सिस्ट इन इट्स नेटिव स्टेट एज डायमंड, ग्रेफाइट एंड फुलरेंस। These are all the carbon compound, the native free pure carbons। डायमंड जानते ही हो, ग्रेफाइट जो पेंसिल जिससे लिखते हैं, फुलरीन एक
एक ऐसा एंटीऑक्सीडेंट की तरह इसका यूज़ होता है, मेडिसिन में स्किन वगैरह पर यूज़ किया जाता है. इट ऑल्सो एक्सिस्ट इन द फॉर्म ऑफ इट्स कंपाउंड लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स. ये कार्बन की सारे कार्बन, सारे में कार्बन है, कार्बोनेट्स में, बाइकार्बोनेट्स में. तो लेट्स रैप अप टिल हियर. वी विल मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, द नेक्स्ट सेशन. Okay, take care. Thank you. Bye. Bye-bye.